Very good morning. I am Dr. Ritika Singh. I am senior resident in the Department of Psychiatry. So we'll start with the second part of anxiety disorder. Last time in anxiety disorder, we have learnt about panic disorder, phobias, specific phobias, generalized anxiety disorder. We have already prepared slides in the lecture. You can see it later on, okay? So today we'll be covering the other part, which includes OCD, that is obsessive compulsive disorder, reaction to severe stress and adjustment disorder. So as we all know, anxiety disorder, we'll be covering it under the following heading. When talking about anxiety disorder, it is a broad category. It has several symptoms. Okay, these are broad category of mental symptoms, mental health condition. They have several overlapping symptoms, but there might be few specific symptoms which will differentiate among them itself. Okay, there would be some symptoms of OCD which will be different from reaction to severe stress, which will be different from adjustment disorder. So last time also we have learned that and generalized anxiety disorder, how it is different from panic attack, how it is different from specific phobias. Okay. So on one hand, we have those phobias and GAD wala part, and on another hand, we have OCD, stress and adjustment reaction in clinical picture. So when we talk about the today's topic, which includes OCD, PTSD, acute stress reaction and adjustment disorder, these disorders have profound impact on day-to-day life, your functioning, whether you're talking about your academic life, whether you're talking about professional life, or your personal life, or your what we call what any part of occupation. Okay, so these disease can cause severe distress. We'll begin with OCD. So you all might be aware of the term OCD. So it is comprising of two main terms. One is obsessive and another is compulsive. Okay. Next is your disorder. So when we talk about OCD, it is a condition characterized by presence of obsessions. Now this obsession, what can it be? We'll read the definition properly, but persistent intrusive thoughts, image और urges. ऐसा नहीं कि सिर्फ सोच होगी, कुछ images भी हो सकती है, कुछ urges भी हो सकती हैं. ठीक है, and compulsion is repetitive act which we do to counteract the anxiety which we feel because of these thoughts. ठीक है, so when a disease is talked about, a patient can simply have just obsession without compulsion, or only compulsion, no obsession, or it can have both, and which is most commonly seen, like obsessive thought and then compulsion. So what is an obsession? Now see, the definition is quite important. It is persistent intrusive thought, urge or image. Okay, now it is unwanted. It is not that it is coming, you're enjoying the thought. No, you don't want that thought, which causes distress. And very important, it is your own thought. Patient बोलेगा मेरी खुद की सोच है, किसी ने बाहर से मेरे दिमाग में सोच नहीं डाली. ठीक है, this is the characteristic finding you have to learn about obsession. कि persistent intrusive thought, urge or image which is unwanted, distressing and recurrent and causes significant anxiety or discomfort. The individual recognizes them as their own thoughts but find them difficult to control. All right. Now, what is a compulsion? A compulsion is a repetitive behavior, not just behavior, it could be a mental act. Mental act में कभी compulsion अपने thought दूर करने के लिए कुछ तीन चार शब्द बोल देगा या counting कर लेगा, तो this will also come under compulsion. Okay, हमेशा बार बार check करना, हाथ धोना के अलावा भी compulsion के कुछ symptoms होते हैं. That an individual feels driven to perform in response to obsession. These actions aim to reduce anxiety. All right. So when we talk about what are the differences between obsession and compulsion, obsessions are recurring irrational ideas, images or thoughts, whereas compulsions are acts or behavior. Now obsession leads to compulsion and compulsion are results of obsession. Now what does obsession cause? It causes anxiety, it causes fear, it causes worry, whereas when we talk about compulsion, now if you increase the amount of compulsion, अगर बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गया तो it can cause some serious bodily damage. Suppose किसी को compulsion हाथ धोने का है तो इतना हाथ धो देगा कि उसके स्किन डैमेज हो गई, उसके फिंगरप्रिंट्स डैमेज हो गए, तो यहाँ तक कंपल्शन पहुंच सकता है. ठीक है, सो दिस इज अ साइकिल कि ऑब्सेशन आया, उससे एंजाइटी हुई, कंपल्शन किया तो एंजाइटी कम हो गई, तो ये साइकिल बने रहती है.
So when we talk about epidemiology, overall there is 2 to 3% prevalence in general population, whereas in India it is 0.6%. There are some clinical studies which shows the prevalence above 0.6% as well. It is the fourth most common psychiatric illness, which is equally common in males and females. But the age of occurrence in male is quite younger in comparison to female. So when we'll talk about adolescent group, so you will say that boys are more affected in comparison to girls. Okay. Now, when we talk about etiology of any mental or psychiatric illness, so you should keep in mind biopsychosocial model. So they are going to be biological factors, they are going to be psychological factor and social or environmental factor. So what are the biological factors? Most importantly, you know, neurotransmitter dysregulation. Serotonin is the main culprit here. Other than this, you can have other hormones, other neurotransmitter ka disbalance as well, like dopamine or adrenaline, but serotonin you should keep in mind. Genetic predisposition, there is strong suggestion ki family studies जिसके higher risk among first degree relative of the patient. Then you have CSTC loop, अगर हम बात करें तो corticostriathalamocortical loop बोलते हैं. So there are few areas of the brain, especially orbitofrontal cortex, anterior cingulate cortex and basal ganglia. ठीक है, तो these are the areas you should keep in mind कि OCD में affected हो सकते हैं. Okay, OFC, basal ganglia, sometimes cingulate gyrus and caudate nucleus as well. All right. Now, what are the behavioral factors which we cause about when we talk about this could be considered in psychological or behavioral factors. So, अगर हम बात करें, आपने कंडीशनिंग पढ़ी होगी, पैवलो का डॉग एक्सपेरिमेंट देखा होगा, तो उसमें एक जो नॉन जो एक स्टिमुलाई जो न्यूट्रल है, वो भी आपका रिएक्शन प्रोड्यूस कर देता है, बिकॉज आपने उसको एक स्टिमुलाई जो रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहा था फूड के साथ कंबाइन कर दिया बेल को, तो सलाइवेशन आ गया. तो इसमें भी ये बात करी क्लासिकल कंडीशनिंग का, जैसे सोचिए कि ओसीडी में क्या होता है कि जो न्यूट्रल स्टिमुलाई हैं उसके साथ भी एंजाइटी जुड़ जाती है. समझ रहे हैं ना? तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग जैसा होता है. सिम्टम्स ऑफन ओरिजिनेट फ्रॉम एसोसिएटिंग सर्टेन स्टिमुलाई विद फियर और एंजाइटी. टेबल पे हाथ रखना, टेबल गंदी नहीं है, लेकिन आपका जर्म और कंटामिनेशन के साथ उसका एसोसिएशन हो गया है. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल टेबल पे भी हाथ रखेगा तब भी पेशेंट को एंजाइटी हो जाएगी, विच इज क्लीन. ठीक है, अदरवाइज गंदगी वाले एरिया में जाएंगे तब तो आप एंशियस होना कि भैया डर्ट और कंटामिनेशन से मुझे बीमारी हो जाएगी. नाउ दिस स्टिमुलस को अगर आपने साथ में टेबल के साथ रख दिया जो कि क्लीन टेबल है, तो ये कंडीशनिंग हो गई है. ठीक है, दूसरा आपने वैसे ही आपने ऑपरेंट कंडीशनिंग भी पढ़ी होगी, जिसमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जैसी चीजें होती हैं. नाउ व्हाट हैपेंस, एंजाइटी हुई, हाथ धो लिए, एंजाइटी रिलीव हो गई, तो ब्रेन ने क्या सोचा, अच्छा यही मुझे बार बार करना है, तो एक साइकिल बन जाती है. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम ट्रीटमेंट की भी बात करते हैं तो थॉट से पहले आपको इस साइकिल को कंट्रोल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. समझ रहे? गेटिंग इट? ठीक है. So compulsion are negatively reinforced, meaning that because performing the compulsion relieves anxiety temporarily, the person is more likely to repeat in the future. ठीक है. Now this is your avoidance behavior. Avoidance behavior, आप जाओगे नहीं, public places में जाना ही बंद कर दिया, मैं अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलूंगा. So this is something behavioral factors which are responsible. So this is just कि आपका obsession हुआ, distress anxiety हुई, एक ritualized behavior किया, आपका टेम्पररी तौर पे एंजाइटी रिलीज हुई, तो इसने रीइंफोर्स कर दिया, उस बिहेवियर ने वापस आपका कंपल्सिव बिहेवियर जो एंजाइटी रिलीज हुई तो रीइंफोर्समेंट हो गया. ठीक है. साइकोसोशल एक्टर में अगेन माल, अगर प्रीवियसली भी अगर किसी का माल एडेप्टिव कोपिंग मैकेनिज्म है, फाइट फ्राइट में फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स ज्यादा है रेदर देन फेसिंग द थिंग. ठीक है, उसी के पर्सनैलिटी ट्रेट लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस है, कॉग्निटिव स्टाइल बिलीफ सिस्टम ही गलत है. ठीक है, समटाइम फैमिली एकोमोडेशन भी होता है, पेशेंट की फैमिली बहुत रिचुअल्स फैमिली के लोग नॉर्मल मानते हैं. ठीक है ना, सपोज जिस फैमिली में क्लीनिंग नॉर्मल है, अगर बच्चा ज्यादा क्लीनिंग कर रहा है तो दैट विल बी लाइक दे माइट बहुत समय तक पेशेंट के जो पेरेंट्स है वो रियलाइज ही नहीं करेंगे या फैमिली मेंबर्स रियलाइज ही नहीं करेंगे कि ये डिजीज का रूप ले चुका है. दे माइट बी रीइंफोर्सिंग इट कि अच्छा ये बच्चा तो बहुत अच्छा काम कर रहा है. ठीक है, सिमिलरली बहुत थॉट्स ऐसे होते हैं जिसके कंपल्शन में लोग ज्यादा प्रेयर करने लग जाते हैं, पूजा पाठ करने लग जाते हैं. ठीक है, कुछ ब्लेफेमस थॉट आया, कुछ गलत थॉट आया, उसको कंपनसेट करने के लिए मंदिर में बैठ गए, तो घर वाले ये भी समझ सकते हैं अच्छा ही तो बोला ज्यादा रिलीजियस हो रहा है, तो उसको पॉजिटिवली उसको देख लेंगे रेदर देन कि अंडरस्टैंडिंग की बीमारी हो सकती है.
ओके। नेक्स्ट इज सोशल आइसोलेशन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप खराब है, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट या कोई ट्रिगर्स है, सब्सटेंस यूज है या फिर कोई बुलिंग वगैरह हुआ है, तो वो सब चीजें ट्रिगर कर सकती है ओसीडी को। नाउ विल टॉक अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ओसीडी, ठीक है। सो चार मेन तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। पहला है डर्ट और कंटामिनेशन वाला। तो कंटामिनेशन में फियर ऑफ जर्म्स, डर्ट और इलनेस, दिस इज वन ऑफ द दिस मोस्ट कॉमन, ठीक है। कंपल्शन क्या है? एक्सेसिव वॉशिंग, क्लीनिंग, सैनिटाइजिंग, दिस इज समथिंग जो पेशेंट भी सबसे ज्यादा आपको इसी केस में मिलेंगे। नेक्स्ट सेकंड मोस्ट कॉमन इज पैथोलॉजिकल डाउट। इसमें क्या होगा? डाउट ऑब्सेशनल सेल्फ से कि मैंने ये चीज सही करी है कि नहीं करी है, मैंने ढंग से पैसे गिने कि नहीं गिने, मैंने लॉक लगाया कि नहीं आया। तो इसमें क्या होगा? रिपीटेटिव चेकिंग बिहेवियर, कि लॉक बार बार चेक करना है, सिलेंडर बार बार चेक करना है, पैसे जब तक मैं 5 बार काउंट करके नहीं गिनता तब तक मेरी एंजाइटी खत्म नहीं होती है, मुझे ये लगता है कि मैंने ढंग से पैसे नहीं गिने, ज्यादा या कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो दिस इज पैथोलॉजिकल डाउट के अंदर जो कंपल्शन आते हैं। नेक्स्ट इज इंट्रूसिव थॉट, दिस कुड बी वेरी डिस्ट्रेसिंग थॉट्स व्हिच कैन बी रिलेटेड टू वायलेंस। किसी को दिमाग में ऐसे सोच आता है कि मैं लोगों को देख के बस गाली बकूं, या किसी को फैमिली मेंबर को देख के ब्लेफेमस या सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, या रिलीजियस एंटिटी को देख के ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। तो इसको कम काउंटर करने के लिए जो मैंने बोला था रिचुअल्स, ठीक है, प्रेइंग, न्यूट्रलाइजिंग थॉट्स रेदर देन विजिबल बिहेवियर। पेशेंट बार बार सफाई नहीं करेगा, चेक नहीं करेगा, चीजें अरेंज नहीं करेगा, बट हो सकता है मन में कुछ काउंट कर ले, ठीक है। इंस्टेड ऑफ अब्यूजिंग वो 10 बार काउंटिंग कर ले, 10 तक गिनती कर ले या कुछ प्रेयर कर ले, ठीक है। तो ये आपका इंट्रूसिव थॉट को काउंटरैक्ट करने के लिए कंपल्सिव बिहेवियर है। नेक्स्ट इज सिमेट्री एंड ऑर्डरिंग। नाउ इसमें क्या होता है? नीड्स द थिंग्स नीड्स टू बी अरेंज्ड इन पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है ना। इसमें ये कुछ हद तक बिहेवियरल भी हो सकता है, किसी की पर्सनालिटी ट्रेट भी है, बट अगर ये डिजीज का फॉर्म ले रही है तो इसमें की चीजों को अगर मैंने 5 लाइन में रखी है तो 5 लाइन में ही होना चाहिए, 5 से 4 लाइन में होनी चाहिए, और वो स्ट्रेट की स्ट्रेट होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रीअरेंजिंग आइटम, काउंटिंग एंड परफॉर्मिंग एक्शन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? आपका एंजाइटी, डिस्ट्रेस ज्यादा हो सकता है, डिप्रेसिव सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं पेशेंट में, ठीक है, बिकॉज दे फील लाइक कि मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट ऑफ ओसीडी को इंसाइट होती है, तो दे आर वेरी डिप्रेस रिगार्डिंग देयर इलनेस कि ये बीमारी क्या होगी, कैसे होगा, ठीक है। रिड्यूस इंटरेस्ट दिखेंगे डिप्रेसिव सिम्टम में, पेशेंट का जो ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, एकेडमिक परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो जाएंगी। टाइम कंजम्पशन की अगर हम बात करें तो जो एक्ट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है, आपका लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगा उससे, ठीक है। सोशल ऑक्यूपेशनल फंक्शन, सीकिंग रीअश्योरेंस फ्रॉम अदर एक्सेसिवली, अवॉइडिंग ट्रिगर्स, लो मूड। एक होता है प्रॉक्सी कंपल्शन, एक चीज होती है उसमें क्या होता है कि अपना तो मैं हाथ धो ही रहा हूँ, मैं घर वालों को भी उतनी बार सफाई कराऊंगा, मेरे रूम में मैं पोछा लगा रहा हूँ तो घर वाले भी जितने बार आएंगे वो पोछा लगाएंगे, ठीक है। तो वो पेरेंट्स को भी या फैमिली वालों को भी, जो मेंबर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सी, आपकी जगह कोई और आपका काम कर रहा है, ठीक है। सो जस्ट अ साइकिल जो सिखा रही है कि आपका काउंटिंग हो सकता है, डर्ट कंटामिनेशन हो सकता है, सिमेट्री, सेक्सुअल थॉट, वॉशिंग, क्लीनिंग, अरेंजिंग एंड सीकिंग रीअश्योरेंस, ऑलराइट। नाउ कुछ डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस है आईसीडी-10 की, ठीक है। तो वो क्या बोलता है उसमें? ओसीडी के लिए चीजें ये बोली है कि एटलीस्ट 2 सक्सेसिव वीक्स के लिए आपका ऑब्सेशनल सिम्टम या कंपल्शन या बोथ, ठीक है। एंड इट शुड बी अ सोर्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड इंटरफेयर विद एक्टिविटीज। नाउ obsessional symptoms should have the following characteristic: they must be recognized as individuals own thoughts or impulse, which we have already seen. There must be at least one thought or act that is still resisted unsuccessfully, even though others may be present when there which the sufferers no longer resist, ठीक है। कुछ थॉट्स हो सकते हैं जिसके साथ पेशेंट ठीक है, मैं इसको नहीं रेजिस्ट कर रहा हूँ, अपने आप हो जाएगा काम, लेकिन एक थॉट एटलीस्ट डायग्नोस्टिक गाइडलाइन के लिए कि होना चाहिए, जिसको मैं कोशिश कर रहा हूँ रोकने की लेकिन नहीं रुक पा रहा है। The thought of carrying out the act must not in itself be pleasurable, ठीक है। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, टेम्पररी एंजाइटी रिलीव हो रही है लेकिन वो मुझे खुशी नहीं दे रही है, ठीक है। इट इज जस्ट की काउंटर पार्ट कि मुझे ये करने से अपनी एंजाइटी रिलीव हो रही है, ठीक है। एंड दे शुड बी अनप्लेजेंटली रिपीटेटिव, ऑलराइट। वैसे ही DSM-5 में भी यही चीजें हैं, उन्होंने ऑब्सेशन और कंपल्शन को डिफाइन किया है। दी ओनली थिंग दे हैव यहाँ पे किया है कि जो टाइम लिमिट है उन्होंने मोर देन 1 आवर, जो भी आप एक्शन कर रहे हो, जो रिपीटेटिव एक्ट कर रहे हो, ओके। अभी डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ओसीडी के जैसे सिम्टम और डिजीजेस में भी मिल सकते हैं। अगर हम देखें तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में भी आपका एंजाइटी बहुत होती है, लेकिन यहाँ पे आपका कंपल्सिव बिहेवियर नहीं मिलेगा, ठीक है।
सिमिलरली इलनेस एंजाइटी में क्या होता है कि पेशेंट रिएश्योरेंस सीकिंग बिहेवियर इसमें भी होता है कि मैं बीमार तो नहीं हूँ, इन्वेस्टिगेशन कराता है, लेकिन वो इलनेस तक ही सीमित है और इन्वेस्टिगेशन करा के पेशेंट थोड़ा सा लीव भी हो जाता है। एमडीडी में भी आपका थॉट रुमिनेशन होता है, ख्याल बार बार आएंगे, बट वो कंपल्सिव एक्ट यहाँ पे भी लैक करेगा। देन न्यूरोलॉजिकल की बात करें तो आपका जो मूवमेंट डिसऑर्डर होता है, ये टिक डिसऑर्डर या टॉरेट है, इसमें सिर्फ मूवमेंट होगा, इसमें थॉट का एसोसिएशन नहीं होगा, ठीक है, रिपीटेटिव इनवॉलेंटरी मूवमेंट होंगे या सडन मूवमेंट हो सकते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में भी रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, बट यू विल आइडेंटिफाई, एक तो आई कांटेक्ट अगर नहीं करते, सोशल आइसोलेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती है, ठीक है, ऑटिज्म में। अगेन स्किजोफ्रेनिया में क्या होता है, बहुत बार ना जो फर्स्ट पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है, वो भी अपने थॉट जैसे वो क्या बोलते हैं, आप उसको ओसीडी के थॉट से कंफ्यूज कर सकते हो, बट इसमें और सिम्टम्स भी होंगे स्किजोफ्रेनिया के। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर हो सकता है, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स हो सकते हैं, ठीक है ना, नेगेटिव सिम्टम्स हो सकते हैं। अभी कुछ हमारे ओसीडी से रिलेटेड डिसऑर्डर है, जैसे होर्डिंग डिसऑर्डर है, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अनदर वन इज ओसीपीडी, ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें आपका जो थॉट्स हैं, जो ट्रेड है, वो ईगो डिस्टोनिक नहीं है, ईगो सिंटोनिक है, पेशेंट को अच्छा लगता है वो करना, ठीक है, वो करता है बिकॉज ही वांट्स दैट थिंग्स टू बी डन। दिस इज जस्ट द डिफरेंशिएशन कि ओसीपीडी आपका ईगो सिंटोनिक है, इट्स अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर, रिजिड अडेरेंस टू रूल्स, ठीक है। यहाँ पे कोई आपको ऑब्सेशन और ये कंपल्शन वाला बिहेवियर ऐसा सच नहीं आ रहा है, बट दिस इज हम समहाउ इनकलकेटेड इन योर पर्सनालिटी कि मुझे ऐसे ही करना है, ठीक है। अनविलिंग टू सीक हेल्प्स एंड परफॉर्म फॉर्म बिलीव दैट इन द राइट वे टू कंडक्ट टास्क। ओके, अदर रिलेटेड डिसऑर्डर जैसे मैंने बोला था, एक है आपका बीडीडी, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिल्यूजन में क्या होता है कि अपना कोई बॉडी पार्ट नहीं सही लगता है, ठीक है, डिस्पाइट कि वो सही हो या फिर कोई माइनर एलिमेंट हो जिसको मेजरली दिया जाता है। हाई एसोसिएशन है प्लास्टिक सर्जरी से बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसोसिएशन का, ठीक है, नोज जॉब कराना है कि हाथ कुछ नहीं दिख रहा है, लिप मेरा ठीक नहीं लग रहा है, बट इसमें जो डिस्ट्रेस होता है दैट इज नॉट इन प्रोपोर्शन टू कि अगर कोई माइनर एलिमेंट हुआ है, ठीक है। Excessive preoccupation with perceived flaws in physical appearance, which are not noticeable or appear minor to others, cause significant distress and impairment in daily functioning. Again, hoarding disorder, इसमें क्या होता है, कोई चीजें जो वैल्यूबल नहीं है उसको रखे रखना अपने पास, ठीक है। सम अमाउंट ऑफ होर्डिंग हर किसी के पास होगा, डब्बे रख लेते हो, पॉलिथीन का बैग रख लेते हो, नॉट दैट, ठीक है। A disorder characterized by persistent difficulty in discarding possessions regardless of their actual value, which leading to clutter that disrupt daily living. कोई लोग क्या करते हैं, चॉकलेट के रैपर्स बहुत ज्यादा संभाल के रख लेंगे, देयर आई हैव सीन पीपल जो कि नेल्स अपने तक रख लेते हैं काट के नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, ठीक है। या फिर अपने स्किन, अगर अब विंटर्स में स्किन निकल रही है तो उसको तक होल्ड करके रख लेंगे, ठीक है। तो कभी कभी रूम्स अगर देखोगे होर्डिंग डिसऑर्डर वालों में कि रहने की जगह नहीं होंगी लेकिन सामान इतना ज्यादा होगा, ठीक है। इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है सामान से और उसको डिस्कार्ड करना मुश्किल होता है, ठीक है। Last is trichotillomania. This is also very common hair pulling disorder. Okay, तो इसमें क्या होता है कि थॉट बार बार खुद के बाल खींचने का आता है, ठीक है, लीडिंग टू हेयर लॉस डिस्पाइट रिपीटेड अटेम्प्ट टू स्टॉप, ठीक है। एंड जो भी टेंशन या एंजाइटी हो रही है वो हेयर पुल करके कम हो जाएगी। उसका साइड इफेक्ट ये होगा कि आपका बाल पैचेस आएंगे, यस, बाल पैचेस आते हैं, कितनी बार पेशेंट को कंपल्सन उसको खा ले तो पेट में आपका क्या बोलता है कि सॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना, रिचुअलिस्टिक बिहेवियर में। सिमिलरली बाल के साथ साथ स्किन पिकिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है ना, इसमें स्किन पिक करते रहेगा, स्किन पिक किया तो इंजरी होगी, स्कार मार्क्स होंगे, इन्फेक्शन तक हो सकता है, ठीक है। नाउ हाउ डू यू इवेलुएट ओसीडी? इंपॉर्टेंट थिंग, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, एमएससी, कुछ लैब इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। हिस्ट्री में आप क्या क्या देखोगे कि नॉर्मल की ऑनसेट, ड्यूरेशन, प्रोग्रेशन क्या है, नेचर ऑफ ऑब्सेशन जो भी हमने पढ़े हैं चारों कैटेगरी में, किससे आ रहे हैं, कितनी बार आ रहे हैं, कितने घंटे तक आप कंपल्सिव एक्ट कर रहे हो, आपको कितना डिस्ट्रेस वो मेंटली कॉज कर रहा है और कितना आपकी साइको सोशल लाइफ इम्पैक्ट हो गई है, ठीक है। एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या क्या है और इनसाइट कितनी है, इम्पैक्ट ऑफ डेली लाइफ, वर्क, रिलेशनशिप, फंक्शनिंग, कोई हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस ट्रीटमेंट है, फैमिली में हिस्ट्री तो नहीं है इस चीजों की, कोई सब्सटेंस यूज, मेडिकल या सर्जिकल इलनेस तो नहीं है एसोसिएटेड, ठीक है।
नाउ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में जर्नली ओसीडी के लोग आपको वेल ग्रूम दिखेंगे, ज्यादा अगर आपका मोस्ट कॉमन डर्ट कंटामिनेशन वाले हैं तो दे लाइक टू कीप देमसेल्फ या तो अरेंज या फिर वेल ग्रूम, ठीक है। इन बिटवीन रिपीटेड मूवमेंट्स, या भी आप बात करोगे तो हो सकता है बिहेवियर में आपको पेशेंट का रिपीटेड मूवमेंट्स दिख जाए कि हाथ बार टच करना है, बात करते वक्त काउंटिंग करनी है, ठीक है। साइकोमोटर एक्टिविटी ओवरऑल जर्नली नॉर्मली रहती है, समटाइम वही कि आपको कंपल्सिव एक्ट करते हुए आपको डिस्ट्रेस दिख सकता है। Speech delay or interruption due to intrusive thoughts can be seen, not always, but it can be seen. Mood and affect, you'll have anxious patient दिखेगा आपको, depressive symptoms हो सकते हैं, distress हो सकता है। थॉट में जैसे मैंने बोला ऑब्सेशन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट कि ऑब्सेशन का जो क्राइटेरिया है कि वो मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। पेशेंट यूजुअली एक्नॉलेज कि थॉट्स इरेशनल है। आपको डिप्रेशन के भी थॉट वाले की होपलेसनेस सेल्फलेसनेस भी मिल सकती है। परसेप्शन इज यूजुअली नॉर्मल इन दीस पेशेंट, ठीक है। कॉग्निशन ओवरऑल इट इज प्रिजर्व बट मे बी कॉम्प्रोमाइज बिकॉज ऑफ परवेसिव नेचर ऑफ इंट्रूसिव थॉट्स। इनसाइट मैक्सिमम पेशेंट्स में मिलती है, देयर आर फ्यू पेशेंट जिनमें ओसीडी में इनसाइट नहीं होगी, ठीक है। दीज आर दोज पेशेंट्स आर वेरी डिफिकल्ट टू केयर। जजमेंट मोर ऑफन देन नॉट आपका जजमेंट और क्या बोलते हैं सही रहता है, बट बिकॉज ऑफ जो स्पेसिफिक कंपल्शन है उसकी वजह से उस एरिया का जजमेंट इम्पेयर हो सकता है, ठीक है। देयर सर्टेन टूल्स जिससे हम आपका ओसीडी वो कर सकते हैं। वाइबॉक्स एक स्केल याद रखती है, बेसिकली रेटिंग स्केल है, नंबर देते हैं कि कितना आपका ऑब्सेशन है, कितना कंपल्शन, उससे डिस्ट्रेस कितना हो रहा है, और ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद ये कितना कम होते जा रहा है, ठीक है। हाउ इफेक्टिव इज ट्रीटमेंट, वेदर इट इज थेरेपी और वेदर इट इज आपका मेडिकल मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ओके। Other than this, we have obsessive compulsive inventory and structured clinical interview for DSM-5, right? Now, management of OCD. So it is both pharmacological, non-pharmacological. Pharmacological में OCD के लिए drug of choice selective serotonin inhibitor SSRIs, antidepressant जो होते हैं, बट ये आपके comparatively higher doses में दिए जाते हैं। Normal depression के comparison higher dose लगती है OCD में, ठीक है। Most commonly आपकी फ्लुओक्सिटिन और फ्लुओक्सामिन ज्यादा यूज होती है। बच्चों में पेरोक्सिटिन, एसिटिलोप्राम भी प्रेफर कर सकते हैं, सर्टिलिन, ये सब चीजें फिर हाई डोज में, ठीक है। Next, you have tricyclic antidepressant में क्लोमिप्रामाइन is also said to be very effective, ठीक है। तो ये दो तीन दवाइयां फ्लुओक्सिटिन, फ्लुओक्सामिन, क्लोमिप्रामाइन आपको याद होना चाहिए ओसीडी के लिए, ठीक है। इसके अलावा एसएनआरआई का भी रोल है। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स का रोल है लो डोजेस में रिस्पेराडोन और एरिपिप्राजोल के एज एन एडजंट ट्रीटमेंट, कि अगर जहाँ थोड़ा बहुत कमी रह गई है कि असर नहीं आ रहा तो ये ऐड करके अच्छा इफेक्ट देखा गया, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज ओसीडी में बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन फार्माकोलॉजिकल। बहुत बार पेशेंट सिर्फ नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट से भी ट्रीट हो सकते हैं, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट, सबसे पहले सीबीटी है। सीबीटी का ही एक एक्सपोजर का ही एक आगे बढ़ के एक स्टेप में ईआरपी, एक्सपोजर रिस्पांस प्रिवेंशन थेरेपी है, तो ये आपको याद रखनी है। इसके अलावा फ्लडिंग हो सकती है, ये बाकी और भी ट्रीटमेंट है, बट एक्सपोजर रिलैप्स प्रिवेंशन यू शुड रिमेंबर, ठीक है। Now, what happens? It is a structured, goal-directed therapy that helps individual identify and modify maladaptive thoughts and behavior. In OCD, it targets irrational belief and compulsive ritual that maintain distress. So, पहले तो assessment और psycho education patient को किस हद तक डिस्ट्रेस है, उसकी इंसाइट कितनी है, ये सब होगा। फिर पेशेंट को एक्सप्लेन करोगे बीमारी के बारे में और थेरेपी कैसे हम प्रोसीड करने वाले हैं इसके बारे में, ठीक है। नाउ लास्ट में इसमें होता है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग की विच इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड चैलेंजिंग डिस्टॉर्टेड थॉट्स। दो तीन चीजें याद रखना है कि एक चीज होती है ना थॉट एक्शन फ्यूजन बोलते हैं। ओसीडी के पेशेंट को क्या होता है, जो मैंने सोच लिया वो मैंने कर लिया है, गलत ख्याल आए यानी कि मैंने वो काम कर लिया। तो ये चीज पे डिफरेंस करना है कि गलत आपके दिमाग में कोई ब्लेफेमस थॉट आ रहा है, कोई वायलेंट थॉट आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने वो काम किया है, आपके एक्शन आपकी सोच से अलग है। तो ये सब चीजें टारगेट करती है, ठीक है। नाउ कभी कभी बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स, पेशेंट टेस्ट देयर फियर इन रियल लाइफ, ठीक है। जो प्लेसेस अवॉइड कर रहे हैं जाना वहां भेजो, ठीक है। जनरल पब्लिक में भेजो, गैदरिंग में भेजना शुरू करो। कि सोचना कि मैं गैदरिंग में जाके बीमार हो जाऊंगा इज डिफरेंट देन गैदरिंग में जाके उस चीज को एक्सपीरियंस करना, ठीक है। Now help them realize that compulsions are unnecessary and the anxiety naturally declines, ठीक है। This is something you should keep in mind। अगर पेशेंट को भी समझा रहे हो कि जो कंपल्शन है अगर एकदम से नहीं कर बंद कर पा रहे हो तो थोड़ा प्रोलॉन्ग कर दो। आप उसी वक्त हाथ ना धो के 15 मिनट बाद धो के कोशिश करो,
आप देखोगे कि एंजाइटी अपने आप कम हो जा रही है, आपको हाथ धोने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। now very important is ERP, नाम से वो है एक्सपोजर करोगे और रिस्पॉन्स प्रिवेंट करोगे। सिमिलरली असेसमेंट करोगे, पेशेंट को साइको एजुकेट करोगे इसके बारे में, ठीक है। अभी इसमें कुछ आप पेशेंट को कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस सिखाओगे, डीप ब्रीदिंग सिखाओगे, JPMR या मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, खुद को कैसे रिलैक्स करना ये बताओगे, ठीक है। फिर एक हायरार्की बनाने को बोलोगे पेशेंट को, सपोज बोलो आप ना लिस्ट बना के लाओ 5-6 चीजों की, जिसमें जो छठे नंबर में है वो चीज होनी चाहिए जिससे सबसे कम एंजाइटी होती है, और पहले नंबर में जिसमें सबसे ज्यादा एंजाइटी होती है, ठीक है। पेशेंट बोलता है कि मुझे टीवी के रिमोट से सबसे कम एंजाइटी होती है, लेकिन मुझे बाथरूम के सिंक से सबसे ज्यादा एंजाइटी होती है, ठीक है, उसको टच करने में। तो उस ऐसे करके हायरार्की बनाने को बोलोगे। और जब काम भी करेंगे तो हम लीस्ट वाली चीज को सबसे पहले पकड़ेंगे, जब तक वो अच्छे से रिजॉल्व नहीं जाता फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नाउ graduated exposure, systematically exposing the patient to fear situations and thoughts, ठीक है, starting with low anxiety situation and progressing to higher anxiety one. नाउ इसमें क्या होता है, आप पेशेंट को हो सकता है कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन से शुरू करो। ERP अगर हम इन वीवो शुरू कर रहे हैं लैब अपने काउंसलिंग चैम्बर में अगर आप शुरू कर रहे हो, तो रिलैक्सेशन करा के पेशेंट को अच्छे से कोई एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, उसमें उसको फेस करने को बोलो कि जो आपका उसका लीस्ट एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुला है, ठीक है, उसके ऊपर काम करके वहां पे आपका पेशेंट का एंजाइटी बिल्ड करके कैसे रिलैक्सेशन विदाउट कंपल्सिव एक्ट का करना है। जो डीप ब्रीदिंग आपने सिखाई, जो रिलैक्सेशन आपने सिखाई है, वो एक्ट करके अपने अपनी एंजाइटी रिड्यूस करनी है। समझ रहे हैं, ठीक है, मोटा मोटा दिस इज हैपेंस, ठीक है। Now, response prevention, preventing compulsion or safety behavior, encourage the patient to tolerate anxiety without engaging in rituals. Teaching coping strategies for future stressor, encouraging continued exposure exercises even after symptoms are improved, ठीक है। इसके अलावा आपका फैमिली साइको एजुकेशन, फैमिली बिहेवियरल थेरेपी और ग्रुप थेरेपी भी हेल्प कर सकती है, ठीक है। दिस इज जस्ट जो भी मैंने आपको समझाया है, जिस दे रखा है कि कैसे उसको एक्सप्लेन किया है। देन वी ऑल्सो हैव न्यूरोस्टिमुलेशन टेक्निक, नाम याद रख लो RTMS, ठीक है, रिपीटेड ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। इसका रोल देखा गया, ECT का इतना रोल नहीं देखा गया। स्ट्रेस मैनेजमेंट में आई टोल्ड यू अबाउट डीप ब्रीदिंग, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, योगा, मेडिटेशन, गाइडेड इमेजिंग, okay. Till here we have done our OCD. Now we'll cover two more part. I'll try to be quick. Next is your reaction to severe stress. So naam se again it is suggested how the patient is going to react in a severe stressful condition. Now physiological and psychological both responses are going to be there, which occurs after exposure to a traumatic or highly stressful event. Now this is divided into acute stress reaction or acute stress disorder, or DSM बोलता है disorder, और PTSD, post traumatic stress disorder. प्रॉब्लम, द ओनली डिफरेंस इज टाइम का, ठीक है ना। अगर विद इन 1 मंथ रहता है तो एक्यूट स्ट्रेस है, उसके ज्यादा रहते हैं तो वो PTSD में आ जाता है। सो ASR या acute stress reaction, it is immediate and transient psychological response to an overwhelming or traumatic event. It typically occurs within minutes to hours after exposure to the stressor and usually resolves within few days, ठीक है। Although the reaction is considered in a normal response to abnormal event, its severity can vary among individuals. कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है तो वहां पे परेशान होना, थोड़ा सा ऑटोनॉमिकली अराउज होना नॉर्मल है, बट द सिवियरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ASR में, ठीक है। सो इट माइट कॉज सम फिजिकल और साइकोलॉजिकल डैमेज। इटियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, एसोसिएटेड ट्रॉमेटिक ट्रिगर होना ही चाहिए, स्ट्रेस रिएक्शन है तो स्ट्रेस होना चाहिए, ठीक है, such as serious accident, natural disaster, assault, or any incident that poses an immediate threat to life or physical integrity of an individual. हिस्ट्री, अगर कोई साइकाइट्रिक हिस्ट्री है, ऑलरेडी डिप्रेशन का पेशेंट है या फिर डिसोसिएशन का पेशेंट है, या पर्सनैलिटी ट्रेट्स ही ऐसे हैं कि लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस है, तो ये एक्सेलरेट कर सकते हैं उस बीमारी को, ठीक है। बायोलॉजिकल HPA एक्सिस में आपका डिसबैलेंस होगा, स्ट्रेस हार्मोन्स, एड्रेनलिन, कोर्टिसोल, ये सब बढ़ेंगे, तो दीज हार्मोन्स आर आपका ऑटोनॉमिक अराउजल के लिए एड्रेनलिन रिस्पॉन्सिबल है, स्ट्रेस रिएक्शन में कोर्टिसोल हमेशा देखा गया है कि बढ़ता है। These changes prepare the body to respond to danger but also contribute to symptoms experienced.
फीचर्स क्या होंगे आपके, कुछ इमोशनल और कॉग्निटिव चेंजेस हो सकते हैं, इंट्रूसिव थॉट्स एंड मेमोरीज, इंटेंस फियर, एंजाइटी, ठीक है, सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम, कंफ्यूजन, डिसोरिएंटेशन फॉर अ टाइम बीइंग, ठीक है, डिफिकल्टी कंसंट्रेशन एंड फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट और अनरियलिटी, डिसोसिएटिव सिम्टम्स भी दिख सकते हैं। बिहेवियरल में आपका क्या होगा कि कम्युनिकेट सही से नहीं कर पा रहे, रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, अवॉइडेंस बिहेवियर हो गया है, विड्रॉल बिहेवियर हो गया, लो मूड साथ में चल रहा है, ठीक है। फिजिकल में एड्रेनलिन बढ़ेगा, रैपिड हार्ट बीट, पसीना ज्यादा हो रहा है, ट्रेमुलसनेस हो रही है, ट्रेमर्स हो रहे हैं, जीआई डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, ठीक है। So you can have intrusive thoughts, avoidant behavior, negative mood changes, arousal and hyperactivity, dissociative symptom and difficulty to function normally. गाइडलाइंस क्या बोलती हैं ICD-10 की इसमें, देयर मस्ट बी एन इमीडिएट एंड क्लियर टेम्पोरल कनेक्शन। टेम्पोरल कोरिलेशन का मतलब होता है टाइम लिमिट, वो जब आपका इंसिडेंट हुआ है और उसका कनेक्शन जो आपके रिएक्शंस या जो आपको सिम्टम्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो between the impact of an exceptional stressor and onset of symptom within a few minutes. In addition, show mixed and usually changing picture in addition to initial state of daze, depression, anxiety, anger, despair. कुछ भी हो सकता है पेशेंट थोड़ी देर के लिए सही हो, उसके बाद एंशियस हो जाए, फिर थोड़ा ठीक होके बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट नो वन टाइम ऑफ सिम्टम्स में प्रीडोमिनेट फॉर लॉन्गर, इट रिजॉल्व्स रैपिडली, ठीक है, विद इन फ्यू डेज कहते हैं इट शुड रिजॉल्व, ठीक है। In those cases where removal from the stressful environment is possible, in cases where the stress continues or cannot be reversed, तो आपका within 48 hours to 72 hours resolve हो जाना चाहिए symptoms. Again आपका DSM-5 के diagnostic criteria हैं। Differential diagnosis में panic attack you should know कि उसमें कोई stressful event नहीं होगा, normal event में भी panic हो सकता है। PTSD में time limit का differentiation है। Adjustment में भी कोई इतना इम्पैक्टफुल स्ट्रेस रिएक्शन और टाइम लिमिट नहीं होगी। जीएडी अगेन आपका स्ट्रेस नहीं है, मेजर डिप्रेसिव एंड डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, ओके। अगेन यू शुड हैव द क्लियर हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेस होना चाहिए, एसोसिएटेड सिम्टम्स होना चाहिए, फिजिकल एग्जामिनेशन यू शुड नो, एंड देयर आर सर्टेन स्केल लाइक distress scale, impact of event scale, and then you have Stanford acute stress reaction questionnaire. All right. वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड एक चीज होती है, ठीक है। इसमें जैसे आप फिजिकल इलनेस में फर्स्ट एड करते हो, इसमें भी वही है, आपको कुछ कुछ पॉइंट्स याद करने हैं कि आपको पेशेंट को रीअश्योरेंस कराना है, पेशेंट को कंफर्टेबल कराना है, सेफ प्लेस पे ले जाना है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, अगर कोई लोग उसके पहचान के हैं तो उनसे मिलाना है जिससे कि वो थोड़ा सेफ फील करे। Supportive intervention, encourage a calm environment, facilitate brief stress reduction technique जैसे deep breathing हो गया, grounding technique हो गई, and monitor the individual for any escalation of symptom. तो this कुछ 5-7 C's है, check, assess, observe and listen, coordinate, get help, cover to safety, calm down, connect with people, competence and confidence. Okay. देन एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन का तो अपने आप रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो मे बी यू माइट रिक्वायर्ड शॉर्ट टाइम के लिए कोई बेंजोडाइजेपिन लो डोज में, जिससे कि वो उस वक्त की एंजाइटी को दूर कर ले, बट सिंस बेंजोडाइजेपिन आपका डिपेंडेंस पोटेंशियल ज्यादा रखता है तो यू शुड बी कॉशियस व्हाइल यूजिंग इट। फॉलो अप एंड रेगुलर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, बिकॉज यू हैव टू सी कहीं पीटीएसडी में तो कन्वर्ट नहीं कर रहा है, 1 मंथ के बाद तक तो सिम्टम्स नहीं रह रहे हैं, तो दिस इज समथिंग यू हैव टू कीप, ओके। नाउ नेक्स्ट उसी का ही आगे कंटिन्यूशन है एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन का, पीटीएसडी, ठीक है। साइकाइट्रिक डिसऑर्डर दैट कैन डेवलप फॉलोइंग एक्सपोजर टू ट्रॉमेटिक इवेंट, कोई इंजरी है, असॉल्ट है, नेचुरल डिजास्टर है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तो नहीं है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय persistent and intrusive thoughts that interfere with daily functioning, differentiating it from normal stress response. नाउ इटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी, अगेन आपको पता है कि कोई एक्सपोजर ट्रॉमेटिक होना चाहिए and which should be encoded in fragmented manner leading to intrusive recollection, flashback and avoidance behavior. दो तीन चीजें याद रखो कि intrusive recollection, flashbacks और avoidance behavior देखा जाता है पीटीएसडी में। यहाँ पे भी यू शुड बी एचपी एक्सिस डिसरेगुलेशन यहाँ पे भी होता है। एमिगडेला जो आपका इमोशनल ब्रेन है, हिप्पोकैम्पस, एमिगडेला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का भी जो थोड़ा बहुत रोल गया देखा गया है पैथोफिजियोलॉजी में। देखिए पोटेंशियल कॉजेस पीटीएसडी में, डोमेस्टिक वायलेंस, कोई वॉर विक्टिम है, एक्चुअली जो वियतनाम वॉर हुआ था वहां से इस टर्म का ओरिजिनेशन देखा गया था कि जो भी सोल्जर्स आते थे
दे हैव वेरी हार्ड फ्लैशबैक्स, उनका सब्सटेंस यूज बढ़ गया था, एग्रेसिव बिहेवियर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो पीटीएसडी, देन पीपल गॉट टू नो कि पीटीएसडी में जो भी वॉर वगैरह के बाद कैसे कैसे चीजें हो सकती है। इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू वॉट, बाकी जो चीजें यहाँ पे दे रखी है उसमें भी आपका पीटीएसडी दिखता है। इंट्रूसिव सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? रिकरेंट इनवॉलंटरी एंड डिस्ट्रेसिंग मेमोरीज और फ्लैशबैक, नाइटमेयर्स ऑफ इंटेंस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस अपॉन एक्सपोजर टू cues reminiscent of the trauma. You will avoid thoughts, feeling an external reminder associated with trauma. नेगेटिव ऑल्टरेशन इन कॉग्निशन एंड मूड, अगेन आपका नेगेटिव बिलीफ, मूड कम होगा, आपका कंसंट्रेशन, मेमोरी में भी असर पड़ेगा। ऑल्टरेशन, हाइपर एक्टिविटी हो सकती है, रिएक्टिविटी बढ़ सकती है। वो आपको थोड़ा सा भी अगर लग रहा है कहीं पे, जैसे एक सोल्जर है वॉर से आ रहा है, अभी पहले तो उसने बहुत सारी बॉम्बिंग और ये सब देखी, गन फायर देखी, अब क्या पता एक जो ट्रक बहुत तेजी से जा रहा है वो भी उसको हाइपर अराउज कर दे, ठीक है ना। तो ये देखिए कि अराउजल और रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, इरिटेबिलिटी, हाइपर विजिलेंस, एक्सैजरेटेड स्टार्टल, ठीक है। these are few signs and symptoms। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बोलता है कि विद इन 6 मंथ सिम्टम आ जाना चाहिए, बस 1 से 6 मंथ तक सिम्टम आ जाना चाहिए ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद। अगर 6 मंथ के बाद भी आ रहा है तब भी पीटीएसडी कंसिडर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कोई और डायग्नोसिस ना बनी हो, कोई डिप्रेसिव सिम्टम, डिप्रेसिव डायग्नोसिस ना बनी हो, कोई जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की डायग्नोसिस ना हो, ठीक है। Then core symptom, again repetitive intrusion, collection of the reenactment of the traumatic events in the form of memories, daytime imagery or dreams. Person may experience emotional detachment, numbing of feelings and avoidance of stimuli. Autonomic disturbances such as mood and behavioral abnormalities. Similarly, इसमें भी वही है, more than 1 month बोला गया है पीटीएस में डायग्नोसिस का, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो हमने एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन और उसमें देखी थी, जैसे जीएडी, पैनिक डिसऑर्डर, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी विद ट्रॉमा हिस्ट्री, डिसोशिएटिव सब्सटेंस और मूड डिसऑर्डर, ठीक है। Again, you will have a detailed history examination, correlation with the traumatic event, जो flashback और जो भी हमने clinical symptoms देखे हैं। Other than that, you should कोई comorbid other psychiatric या medical condition तो नहीं है। This should be standardized measures like PTSD का scale अगर देखना है, ठीक है। अगेन मैनेजमेंट में पीटीएसडी में भी आपका साइकोथेरेपेटिक मैनेजमेंट पहले प्रेफर किया जाता है। ऑब्वियसली वी हैव अ रोल ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स यहाँ पे भी, बट यहाँ पे कुछ चीजें याद रखिए, जो सीबीटी भी कर रहे हैं वो ट्रॉमा फोकस सीबीटी होती है, ठीक है। हेल्प्स पेशेंट प्रोसेस एंड रिफ्रेम ट्रॉमेटिक मेमोरीज, इन्वॉल्व्स टेक्निक, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग एंड स्ट्रेच मैनेजमेंट स्किल, रिड्यूस अवॉइडेंस बिहेवियर, इमोशनल डिस्टेंस, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर जो हमने ईआर में पहले पढ़ा था उसी का ही एक वेरिएंट है, इसमें एक्सपोजर थोड़ा सा लंबे समय तक, ठीक है। ग्रेजुअल एक्सपोजर टू ट्रॉमा, स्टिमुलाई टू रिड्यूस फियर एंड अवॉइडेंस बिहेवियर, जैसे देखा था इमेजिनल बिहेवियर इन वीवो कह सकते हैं, या फिर एंड आपका इट विल हेल्प पेशेंट टू हैबिचुएट टू डिस्ट्रेसिंग मेमोरीज एंड रिड्यूस इमोशनल रिएक्टिविटी। EMDR इज वेरी मच स्पेसिफिक टू पीटीएसडी या ट्रॉमा थेरेपी में। इसमें क्या होता है कि फिंगर मूवमेंट्स के साथ पेशेंट को जो भी मेमोरी है उससे कैसे डील करना है, ठीक है। आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग, आप पेशेंट को भी इमेजिन करने को बोलोगे, अभी आप क्या फील कर रहे हो, कैसी मेमोरी है, या जिस चीज में जो भी डिस्ट्रेसिंग इवेंट है उसको याद करके बताइए। जब पेशेंट एक जगह पे हो तो उसको आईज ओपन करने को बोलोगे और अपनी फिंगर फॉलो कराओगे और पेशेंट को बोलोगे कि अपनी आईज से इस चीज को फॉलो करो, ठीक है ना। आप हिस्ट्री टेकिंग करोगे, प्रिपेयर करोगे, डिसेंसिटाइजेशन करोगे, ठीक है, इंस्टॉलेशन ऑफ दैट मेमोरी और बॉडी स्कैन। जब भी पेशेंट, बॉडी स्कैन का यहाँ पे मतलब है कि जब पेशेंट एक्सेस एंजाइटी फील कर रहा है तो उससे पूछो कि आपके बॉडी में क्या फील हो रहा है, और जब आई मूवमेंट करने के बाद अगर थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा है तो तब पूछो बॉडी में क्या हो रहा है, देन और ये रीएवैल्यूएशन करते रहना, एक सेशन में नहीं होता है, मल्टीपल सेशन लगते हैं। देन यू हैव ग्रुप थेरेपी, माइंडफुलनेस, वेब थेरेपी एंड सब सपोर्टिव थेरेपीज एज वेल। SSRIs, I told you already कि आपका एंटी डिप्रेसेंट सर्ट्रिलिन, पेरोक्सिटिन, फ्लोक्सिटिन, ओके। अदर देन दैट SNRI, वेनलाफेक्टिन, वेनलाफिक्सिन अगर देख सकते हैं। प्राजोसिन इज अ ड्रग जो कि आपका हाइपर अराउजल को ट्रीट करने में हेल्प करती है। शॉर्ट टर्म यूज के लिए आप बेंजोडाइजेपिन यूज कर सकते हैं, ठीक है। मूड स्टेबलाइजर अगर इमोशनल डिसरेगुलेशन ज्यादा है, इम्पल्सिविटी ज्यादा है पेशेंट में तो यूज कर सकते हैं।
अगेन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ठीक है, एक्सरसाइज, रेगुलर स्लीप हाइजीन और गुड सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स. Last, coming on to the last topic of today's, which is adjustment disorder. एडजस्टमेंट डिसऑर्डर आपका स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशन ही अगेन. इसमें क्या होता है, इमोशनल एंड बिहेवियर सिम्टम इन रिस्पॉन्स टू आइडेंटिफाइबल स्ट्रेसर अकरिंग विद इन 10 to 3 मंथ. आईसीडी 10 1 month बोलता है और 3 months डीएसएम 5 बोलता है, ठीक है. एंड इट शुड रिजॉल्व विद इन 6 months आफ्टर दिस स्ट्रेसर इज टर्मिनेटेड, ठीक है. इट कैन अकर एट एनी एज, बट लेकिन एडोलेसेंट और यंग एज ग्रुप में ज्यादा भेजा गया है, जिससे मेजर लाइफ चेंजेस कभी हो रहे हैं तब देखने को मिला है, ठीक है. की फीचर है आपके मालअडेप्टिव इमोशनल बिहेवियरल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, इम्पेयरमेंट इन सोशल, ऑक्यूपेशनल और एकेडमिक फंक्शनिंग. सिम्टम्स आर नॉट ड्यू टू एनी अदर मेंटल कंडीशन. अगेन इसका साइकोसोशल स्ट्रेसर हो सकता है कॉज, कोई भी इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे कि कोई मेजर रिलेशनशिप टूटा है, डिवोर्स हुआ है, बोर्डिंग स्कूल भेज रहे हो बच्चे को, ठीक है ना, कोई जॉब इश्यूज है, फाइनेंशियल है, फेलियर है, बुलिंग है, क्रॉनिक इलनेस है, डिसेबिलिटी है, या फिर कोई ट्रॉमा है, ठीक है, माइग्रेशन जैसी कोई चीज है, तब भी हो सकता है ना. इंडिविजुअल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, किसी पेशेंट का लो रेजिलियंस है, हाई न्यूरोटिसिज्म है, अकेले रह रहा है, कोई सोशल सपोर्ट नहीं है, लोग समझने वाले नहीं है, या फिर पेशेंट को आप कुछ लोग बायोलॉजिकली स्ट्रेस सेंसिटिव होते हैं, उनका फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस कम होता है ना, ये सब चीज तो नहीं है. क्लिनिकल फीचर्स देखें तो इमोशनल सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन है, होपलेसनेस है, एंजाइटी हो सकती है, इरिटेबिलिटी हो सकती है. फिजिकल सिम्टम में बॉडी एक से लेकर हेड एक से लेकर स्लीप एपेटाइट्स, कोई भी सिम्टम प्रेजेंट कर सकता है. गैस्ट्रिक इरिटेबिलिटी के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है, चेस्ट पेन के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है. सोशली विड्रॉल बिहेवियर, रेकलेस बिहेवियर भी देख सकते हो आप, ठीक है, गाड़ी तेज चला रहे हैं, खुद को हार्म कर रहे हैं, इंक्रीज सब्सटेंस यूज, डिफिकल्टी कंसंट्रेशन, मेमोरी इंपेयरमेंट एंड इनडिसिसिवनेस कॉग्निटिव सिम्टम्स में आ गए. अगेन आईसीडी 10 क्या बोलता है इसको, आपके 2-3 क्राइटेरिया डिफाइन किए. पहले तो इमोशनल डिस्ट्रेस एंड इम्पेयरमेंट, प्रेजेंस ऑफ सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस एंड इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, डिस्ट्रेस मस्ट इंटरफेयर विद सोशल फंक्शनिंग. स्ट्रेसर होना चाहिए स्पेसिफिक टू सिग्निफिकेंट लाइफ चेंज और स्ट्रेसफुल इवेंट और सच एज माइग्रेशन, रिफ्यूजी स्टेटस, एंड इट शुड अफेक्ट द इंडिविजुअल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, कोई फैमिली मेंबर के वाया भी आपको अफेक्ट आ सकता है. नाउ ये जो भी सिम्टम्स हैं आपका मैनिफेस्ट कैसे कर रहे हैं, ये सब चीजें फिर से वही सिम्टम्स जो हमने पहले देखा है. इन सम केसेस देयर कुड बी एंगर आउटबर्स्ट या वायलेंस, ठीक है. बच्चों में आपका कॉन्डक्ट जैसे सिम्टम दिख सकते हैं, ठीक है, रूल्स नहीं फॉलो करेंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे, डिसोशियल बिहेवियर, बेड वेटिंग भी हो सकता है, ठीक है. विद इन 1 month ऑफ द स्ट्रेसर एंड आफ्टर 6 month रिजॉल्व होना चाहिए, स्ट्रेसर हटा गया है, टाइम फ्रेम ये बोलता है, ठीक है. सिमिलरली डीएसएम के क्राइटेरिया. डिफरेंशियल डायग्नोसिस में प्लीज रिमेंबर ग्रीफ एंड बेरीवमेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आ सकती है, ठीक है. पेशेंट अगर ग्रीफ कर रहा है, कोई मेजर लॉस हुआ है, किसी कोई फैमिली मेंबर की डेथ हुई, तो उस टाइम पे भी ऐसे पेशेंट बिहेव कर सकता है, ठीक है ना. मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, पीटीएसडी और जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, कॉन्डक्ट एंड सब्सटेंस यूज डिफरेंशियल डायग्नोसिस में. अगेन यू विल हैव टू इवैल्यूएट कि स्ट्रेसर क्या है, टाइमलाइन कितना है उसका, 1 या 3 महीने के विद इन है, इमोशनल बिहेवियर सिम्टम्स क्या है, इसका फंक्शनल असेसमेंट करना है कि वर्क रिलेशनशिप, डेली लाइफ में क्या इम्पैक्ट हुआ है. फिजिकल एग्जामिनेशन टू रूल आउट कोई फिजिकल सिम्टम तो नहीं है, एंड एमएससी में आपको स्ट्रक्चरली कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर दिख रहा है तो नहीं. कुछ रेटिंग स्केल है अदर देन आपका एडजस्टमेंट डिसऑर्डर मॉड्यूल और इंटरनेशनल एडजस्टमेंट डिसऑर्डर क्वेश्चन है. इसके अलावा आप डिप्रेशन इन्वेंट्री या फिर एंजाइटी इन्वेंट्री भी लगा सकते हैं टू रूल आउट कोई और कॉजेस तो नहीं. कुछ इन्वेस्टिगेशन याद रखिए, थायराइड भी आपका मूड चेंजेस कॉज कर सकता है, कि थायराइड फंक्शन में कोई दिक्कत तो नहीं है. सीबीसी टू रूल आउट अनीमिया रिलेटेड फटीग तो नहीं है. B12 D3 का लेवल देखो कि इस वजह से तो कहीं वीकनेस नहीं आ रही है, सब्सटेंस यूज के लिए स्क्रीन करना है. अगेन साइकोथेरेपी, सीबीटी यूज करनी है, स्ट्रेसर क्या है उस पर कॉग्निटिव जो बिलीव्स हैं उसको चैलेंज करना है, ठीक है. ग्रुप थेरेपी कैन हेल्प, सपोर्टिव थेरेपी, क्राइसिस इंटरवेंशन थेरेपी, शॉर्ट टर्म थेरेपी है, इसमें पेशेंट को स्टेबलाइज मतलब जो स्ट्रेसर है उससे दूर करा के फिर सजेशन, रीएश्योरेंस एंड एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन किया जा सकता है. फार्माकोथेरेपी में कोशिश की जाती है कि साइकोथेरेपी से ही ज्यादा पेशेंट ट्रीट हो, उसके बाद एंजियोलिटिक या लो डोज एंटी डिप्रेशन भी चल सकता है. अगेन डीप ब्रीदिंग, रिलैक्सेशन, रेगुलर स्लीप हाइजीन, योगा, मेडिटेशन का रोल है.
So in conclusion, we have understand all these anxiety related disorder. They have multifactorial etiology. Role of trauma is very common in most of the diseases. So you should identify and must be able to differentiate between the three and tailored treatment and lifestyle modifications. Okay. With this, I'll conclude. These are the references. Thank you. Any questions?